In the previous class, we had studied about the mathematical aspects of simple harmonic motion, and we had seen that there is a particular differential equation of motion which we can identify with simple harmonic motion. Now, just to recapitulate what this statement stands for, if you see that some object is moving vertically up and down, that means it's oscillating or vibrating up and down, then the variable of displacement preferably chosen by you to develop its equation would be y. If you see some object oscillating or vibrating in the horizontal direction, then the preferable variable that you will choose to represent the displacement, which is changing with respect to time, would most probably be x. And similarly, there could be motion in the z direction also. If you take a three-dimensional coordinate system, in the z direction, there could be displacement. Alternatively, you could see that something is executing oscillatory or vibratory motion in a circular fashion. For example, a simple pendulum. A simple pendulum shows its motion, which is to and fro or oscillatory, about the mean position, which is the hanging point O. And if you see that the path taken by the ball is actually part of a circular path. So it is an arc taken out of an imaginary circle. So in this case, the variable that you would preferably choose to depict the displacement of the pendulum would be theta. So depending on the direction of motion, these are the general variables that you use to represent displacement: x, y, z, and theta. Now we talk about the differential equation of motion of such objects. So something is vibrating up and down, you represent the displacement with y. Something is vibrating or oscillating in the horizontal direction to and fro, you represent the displacement with x. And something is oscillating to and fro along a circular path, then you represent the displacement maybe using theta. Now the next thing that you do is you develop the differential equation of motion. So if you see a differential equation like this, then you say, yes, we recognize this equation. This is simple harmonic motion. So you say that something is oscillating in the x direction. So the differential equation was developed for x. If something is oscillating in the y direction, then this same differential equation would come out like this: d2y by dt square plus omega n square y equal to 0. If it is in theta, it would come out like this: d2 theta upon dt square plus omega n square theta equal to 0. So if you see a differential equation of these formats, then you say that, okay, I went on and I saw something that was oscillating, but I was not sure whether the oscillation was simple harmonic or not. So what did I do to ensure it? I developed the differential equation, and then I compared it with the standard differential equation. And if I see that the format of the standard differential equation is the same for the specific particular oscillating body, then I say that my body, which is oscillating or depicting to and fro motion, is actually executing simple harmonic motion. So an oscillating body would be executing simple harmonic motion only and only if its differential equation of motion matches these formats. So now what we are going to do is
we are moving on to a new topic, and I have developed the third set of notes for you starting today. And now we are starting the topic of undamped free vibrations of single degree of freedom systems. This is what we are starting. Okay. And what is the aim under this topic? The aim is to find the natural frequency of some common systems. So you will be given some simple systems or complicated systems, but the common thing in all those systems would be that you will see that all these systems are either vibrating or oscillating. And it is your task to find the natural frequency of such oscillations that you see. तो अपन को करना क्या है, अब से अपन इस टॉपिक के अंडर अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में जो भी सिस्टम मिलेगा उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे. नेचुरल फ्रीक्वेंसी as per the name goes, would be depicted by f suffix n, the small n representing natural. ठीक है. Natural का मतलब क्या होता है? Free vibrations की frequency. And you should always keep in mind that if somebody asks you to find the frequency and you happen to find the value of omega n, it is one and the same thing. Why? Because omega n, or angular frequency as it is commonly called, the unit being radians per second, and f suffix n, the small n representing natural, are the same frequency. So if Sir, you are not audible. पंकज यादव, यस सर. अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही. ओके. सर बीच में चली गई थी आवाज.
हाँ, ये यहाँ थोड़ा क्या है, लाइट चली गई थी इसलिए कनेक्शन लूज हो गया था। एनीवे, व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट यू हर्ड? कहाँ तक आपने सुन लिया था? पन्ना धन राव बताइए। सर आपने टॉपिक स्टार्ट ही किया था बस। टॉपिक स्टार्ट ही किया था, ओके, हाँ वी विल मतलब टॉपिक रिपीट के इट। बारे में बता रहे थे। So I was speaking about the general differential equation of simple harmonic motion. तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता हुआ दिख सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता हुआ दिख सकता है, या फिर एक एंगुलर फैशन में ऑसिलेट करता हुआ दिख सकता है। तो उनके मोशंस की जो वेरिएबल्स होंगी वो एक्स वाई जेड थीटा कुछ भी हो सकती है। वर्टिकल है तो वाई, हॉरिजॉन्टल है तो एक्स, एंगुलर है तो थीटा। इन केसेस में जब वेरिएबल x होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में आना चाहिए, जब वेरिएबल y होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी दिखनी चाहिए, और जब वेरिएबल आपका थीटा होगा तो सिंपल Excuse me, हार्मोनिक sir. मोशन। हाँ बोलो। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी है अपनी। ओके, सॉरी सॉरी, ये कनेक्शन कट गया था ना, तो अपने को सारा चीज वापस से करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है? Yes sir, now it's visible. ओके। So if you have oscillatory or vibratory motion in x direction, and if that oscillatory motion is simple harmonic also, then the differential equation of its motion would look like this. If you have something oscillating or vibrating in the y direction, you go on and develop the differential equation of motion. And if you see that the differential equation of motion in y direction matches with this format, then you can claim that the motion is simple harmonic. If you have some angular motion like that of a simple pendulum, then the equation would be developed for theta. And after developing the differential equation, if the differential equation of your system matches this format, then you can say that my oscillatory object is executing simple harmonic motion. तो simple harmonic motion में अगर object होगा तो उसका differential equation इससे मैच करेगा, ये कह रहा हूं मैं। अगर इससे मैच नहीं कर रहा तो फिर वो ऑसिलेटिंग तो हो सकता है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो अब अपन क्या करेंगे? आज अपना टॉपिक था, एज आई एम रिपीटिंग, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। ठीक है, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक एक करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चलेंगे। Now, how are we going to proceed? I will just give you an idea about this. Start कर रहे हैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम जिसमें एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज चलती हुई दिखेगी आपको। और उसके साथ में एक और सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि डैम्पिंग है ही नहीं, which is an oversimplification. Why? Because we know that in the entire world, or rather in the entire universe, there is nothing which can vibrate without damping. यानी कि बिना रेजिस्टेंस के कोई मोशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन विदाउट डैम्पिंग इज लिटरली इम्पॉसिबल। तो अपन अभी फिलहाल क्या मान रहे हैं? अपन बोल रहे हैं कि डैम्पिंग है ही नहीं, तो उसको अपन एक नाम देते हैं अनडैम्प्ड, यानी कि विदाउट डैम्पिंग। तो आपने डैम्पिंग को भी हटा दिया, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी ले लिया, और बोला कि नेचुरल वाइब्रेशंस हो रही है या फिर फ्री वाइब्रेशंस हो रही है। यानी कि अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन बाहर से कोई फोर्स लगा के फोर्स्ड वाइब्रेशंस की स्टडी नहीं कर रहे। तो इन तीनों चीजों को कंबाइन करा तो आपका टॉपिक बन गया अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। तो ये सबसे सिंपलेस्ट स्टडी है जहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ना तो डैम्पिंग है, ना एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन है, और सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, जब ये अपन पढ़ चुके होंगे, देन वी विल स्टार्ट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बने रखेंगे, लेकिन अब अपन डैम्पिंग ले आएंगे। बोलेंगे कि अब रियल वर्ल्ड की वाइब्रेशन पे आ जाओ, कि अगर फ्री वाइब्रेशन हो रही हो, अच्छा वाइब्रेशन को अभी भी फ्री ही रखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा कि फ्री वाइब्रेशन हो रही है, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन अब डैम्पिंग आ गई।
ठीक है, तो क्या इक्वेशंस बनेंगी, कैसे इसकी स्टडी होगी, कैसे मैथमेटिक्स डेवलप होगी। जब अपन ये भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अपन अब एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी और आगे चले जाएंगे, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे रहेंगे। डैम्पिंग को तो रखेंगे ही, क्योंकि अब तो डैम्पिंग आ ही चुकी है। और फ्री के साथ में अपन अब फिर पढ़ेंगे कि अगर अपन बाहर से फोर्स दे करके वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करें तो वाइब्रेशंस की मैथमेटिक्स कैसी होगी। सो नाउ वी हैव एडेड वन मोर लेवल ऑफ डिफिकल्टी बाय इंक्लूडिंग अ फोर्सिंग फंक्शन। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ डैम्पिंग एंड एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन, ये चीजें आ जाएगी। जब ये भी पढ़ लेंगे, देन वी विल कम टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, फिर हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आ जाएंगे। और जब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। So DOF, whenever I write in short, is basically representing degrees of freedom. ठीक है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपन क्या चीज होता है ये समझ चुके हैं पहले ही, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी जाएगा। एंड जनरली द आर्टिफैक्ट्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, जो भी आपकी जो मशीनरी है, जितनी भी चीजें जो कि वाइब्रेट कर सकती हैं, अगर इन जनरल देखा जाए तो ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स के अंदर ही आती हैं। सो रियल वर्ल्ड सिस्टम्स आर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अभी अपन सबसे बेसिक लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे हैं, सिंगल डिग्री अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक रहा आज का। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब इस टॉपिक के अंदर अपन को करना क्या है, आई विल रिपीट वंस अगेन। वी हैव टू फाइंड ओमेगा एन और एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम। तो आपको अलग अलग तरीके के सिस्टम्स दिए जाएंगे, सिंपल सिस्टम्स होंगे, और उन सिस्टम्स में आपके लिए चैलेंज ये रहेगा कि उस सिस्टम की फ्री वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ। और जैसा मैंने अभी कहा था, हो सकता है आप लोगों ने देखा नहीं हो या मिस हो गया हो, बट लेट मी चेक वंस अगेन। आर यू ऑल लिसनिंग? कैन एनीबॉडी कंफर्म? बीच में अभी कोई और डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई थी? चल रहा है सर, No, सुनाई sir. दे रहा है। ओके, चल रहा है इसमें। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना अपना एम है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ एन से डिनोट की जाती है, जिसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ओमेगा एन, जो कि अपन अधिकतर केसेस में निकाल करके वहीं पे स्टॉप कर देंगे काम को, ओमेगा एन निकालना भी काफी है। क्यों? क्योंकि ओमेगा एन और एफ एन के बीच में सिर्फ ये 2 पाई का फासला होता है। सो इफ यू सिंपली मल्टीप्लाई 2 पाई विथ एफ एन, यू गेट ओमेगा एन। या फिर ये कह लो कि मैं अगर ओमेगा एन निकाल करके उसको 2 पाई से डिवाइड ही तो करना है मेरे को, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल ही जाएगी। बस इतना सही तो फर्क होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी निकालने को कहें और आप ओमेगा एन रेडियन पर सेकंड में निकाल करके छोड़ दें, तो आपका आंसर कंप्लीट मान लिया जाएगा। So from now onwards, we may or may not take the additional pain to find Fn in hertz. We might, in general, stop our work by finding omega n only. ठीक है? Suffix n represents natural frequency, and natural frequency means the frequency of free vibrations. यानी किसी चीज को वाइब्रेट या ऑसिलेट करा करके आप छोड़ दो और उसको अपने आप वाइब्रेट या ऑसिलेट होने दो, आप उसमें कोई छेड़खानी ना करो, तो वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन या वाइब्रेशन दिखाएगा, इसको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर इसका ये आपको प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको जो भी सिस्टम दिया जाए, सबसे पहले उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास 3 टेक्निक्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटरी सिस्टम। फर्स्ट यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड यूजिंग एनर्जी मेथड, एंड देन फाइनली डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये तीनों तरीके से आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। और जरूरी नहीं है कि आपको सिस्टम दे दिया जाए और सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा जाए। आपसे स्पेसिफिकली किसी मेथड को लेकर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा जा सकता है।
द क्वेश्चन माइट बी फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे कि एक सिस्टम दिया और बोलेंगे कि इसको डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल लगा करके नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ, तो आपके पास में कोई चारा नहीं रह जाएगा। आप इनको ओमिट नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि मेरे को डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल पसंद नहीं है, या फिर मेरे को न्यूटन सेकंड लॉ पसंद नहीं है, एनर्जी मेथड मेरा फेवरेट है, या फिर मेरे को सिर्फ यही आता है। यू कैन नॉट से लाइक दैट, यू हैव टू लर्न ऑल थ्री, यू हैव नो चॉइस। ठीक है, तो अपन ये सारी चीजें सीखेंगे। तो स्टेप्स प्रोसीजर बोलता है कि पहले तो इन तीनों में से किसी भी एक मेथड को यूज करो और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ उसकी, यूजिंग एनी वन ऑफ दीज थ्री मेथड्स। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो उसको सॉल्व करो, एंड thus you will arrive at the value of omega n। तो आज मैं आपको इसकी एक टेक्निक सिखाऊंगा। Who is this? पलाश मधुकर। आपको जो टेक्निक आज सिखाने जा रहा हूं, इसको लेकर के आगे आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। सो प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसमें काफी सारे एजम्पशंस हैं और इसमें काफी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो कि ध्यान रखना जरूरी है। और आप अब से आगे जितनी भी अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उन सब में ये कॉमन प्रोसीजर यूज होगा। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज स्टार्टिंग विथ use Newton's law to derive an expression of omega n, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने को कही गई है। किसकी? फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम शोन। एक स्प्रिंग है, एक मास है, इसकी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? साफ बात है, एक ही मास है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है। ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू ऑसिलेट इन द वाई डायरेक्शन। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेज इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और पैरामीटर्स और वेरिएबल्स required to specify the complete configuration of the system at any given instant of time। तो यानी जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो ये मास किसी टाइम पे यहां होगा, किसी टाइम पे यहां होगा, किसी टाइम पे यहां होगा, कहीं पर भी हो ये मास होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही कहीं किसी जगह पर ना। तो अगर मैं सिर्फ एक वाई वेरिएबल लेके आ जाऊं तो क्या मैं इस पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन किसी भी टाइम पे स्पेसिफाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आप बताइए। इज ओनली वन वेरिएबल रिक्वायर्ड और नॉट? क्या मेरे को एक से ज्यादा वेरिएबल चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। सो दिस इज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑसिलेटिंग इन द वाई डायरेक्शन। तो अब अपन को करना क्या है? सबसे पहले तो अपन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके चेक करेंगे कि क्या इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इससे मैच करती है क्या। वाई डायरेक्शन में अपना मोशन हो रहा है तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें से कौन से मैच होना चाहिए? ये बीच वाला, दिस वन, इस वाले से मैच होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इससे मैच हो जाए तो अपन यहां पर कंपैरिजन करके ओमेगा एन को पकड़ लेंगे। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे करना है एक्चुअली। सबसे पहले अपन ने ये देखा कि एक खाली स्प्रिंग ले लेता हूं। स्प्रिंग के बारे में भी आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए। स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के। इसके बारे में कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी पीपल कैन टेल मी समथिंग अबाउट के? क्योंकि ये के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर अपन आगे बात करके कोई फायदा नहीं है। स्प्रिंग है, प्लीज एनीबडी हु इज इवन अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट एक्सप्लेन इन हिज और हर ओन वर्ड्स। क्या है ये स्टिफनेस? तो इसका नाम हो गया, चीज क्या है जरा बताइए। सर लोड पर यूनिट एरिया। F No. equals to minus kx square kx होता है सर। स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है, ये सब तो इसके नाम हो गए। अच्छा ये भी जरूरी है, K is called as stiffness, it is called as spring constant, sometimes you might also find it being referred to as the spring scale। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, कहीं सरप्राइज नहीं हो जाए कि स्प्रिंग स्केल दे रखा है, आपने बोले यार स्प्रिंग स्केल तो हमें पता ही नहीं है। इट इज ऑल्सो
के, के की यूनिट न्यूटन पर मीटर है, एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये क्या चीज है? ये सिर्फ इतनी सी चीज है। फोर्स लगती है ना, जब फोर्स लगती है तब ये कितना पीछे जाती है वापस लगने के बाद, लोड लगने के बाद, तो वो होती है स्टिफनेस। ओके, थोड़ा सा आपने उल्टा बोल दिया, लेकिन आपने और थोड़ा सा बेटर कर दिया है। फॉर दैट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, बट लर्न द करेक्ट थिंग। आपने ये कहा कि फोर्स लगने पे ये स्प्रिंग कितना पीछे या आगे जाती है, उसको स्टिफनेस कहते हैं। नहीं स्टिफनेस सर, उस फोर्स लगने पे जब आगे जाएगी ना, तो ये अपना, जब अपन लोड लगाते हैं स्प्रिंग के ऊपर तब वो नीचे जाता है, लेकिन जो इलांगुएशन में जब लगने के बाद जो स्प्रिंग जो वापस पीछे अपनी बैक पुश करती है ना उसको, तो उसको कहते हैं ओके, फोर्स। ठीक हाँ। है। आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको। नाउ लर्न द सिंपलर मेथड। इसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट तक खींचने के लिए या दबाने के लिए मुझको कितना बल लगाना पड़ेगा, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अभी आपने कैसे बताया? आपने बोला कि आप पहले तो फोर्स देके इसको खींच के रख लो, और जब ये अपने आप जब ये पीछे जाएगा तो ये कितना फोर्स लगाएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है अपन को बात को। आप तो सीधे सीधे ये बता दो कि मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है और मैं उसको 1 सेंटीमीटर से खींचना चाहता हूं, ठीक है? तो आप अपने दोनों उंगलियों के बीच में स्प्रिंग को पकड़ें और उसको खींचें और इतना बल लगाएं कि वो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर खींच करके रुक जाए। तो अब इसको इस 1 सेंटीमीटर की स्ट्रेचिंग पर खींच के पकड़ने के लिए आपने कितना बल लगा के रखा हुआ है न्यूटन में, वो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया न्यूटन पर सेंटीमीटर में। तो अब इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लो। अगर 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए आपने सपोज 2 न्यूटन लगाया था, तो 1 मीटर खींचने के लिए कितना न्यूटन लगाना पड़ेगा, जरा बताओ एनीबडी? 1 सेंटीमीटर खींच के रखने के लिए 2 न्यूटन फोर्स लगाई थी, तो उसको 1 मीटर तक खींचने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 200. 100 times. 200 न्यूटन. So the spring scale or the spring constant of that spring simply becomes equal to 200 न्यूटन पर मीटर। यह है स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है? और SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K क्या है, ये अभी अपन ने समझ लिया। अब चूंकि अपन ने K की बात पढ़ी ली है, तो थोड़ा सा और इसके आगे चल लेते हैं। There is a spring of spring constant K1. I attach it to another spring of spring constant K2. And if I want to replace this whole combination of two springs in series with an equivalent spring of some unknown spring constant K, what will be the value of K? Anybody? Open question है, बताइए। K1 plus K1 plus K1 upon K1 into K2. K1 plus K2 तो गलत आंसर है। The right answer is for series combination of springs, you have to find K by taking this relationship. Parallel. ठीक है? ये रिलेशनशिप है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, प्लीज रिमेंबर इट। On the other hand, if I have a spring of spring constant K1 connected in parallel to another spring of spring constant K2, and if I want to replace this whole combination with one single equivalent spring of some unknown spring constant K, what will be the value of this K? Now here your answer is simply K1 plus K2. This is for parallel combination. ये चीज अब आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है आरटीयू में, लेकिन इसमें कई सारे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली इस कारण मात खा जाते हैं क्योंकि उनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं याद था। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस K1 plus K2, सीरीज स्प्रिंग कॉम्बिनेशन द K विल बी इवेंचुअली फाउंड बाय, अभी इसमें K कैसे निकालेंगे अपन? 1/K इक्वल टू K1, 1/K1 plus K2 है, तो K कैसे निकलेगा?
सर k इक्वल टू हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। वेरी गुड, इट इज k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। इस तरीके से निकलेगा आपका k अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो k विल बी सिंपली k1 प्लस k2, सीधे सीधे ऐड हो जाता है। नाउ दिस सेम कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड, it does not end at two springs, it can be extended for multiple springs k1 k2 k3 and so on till kn। तो क्या करोगे? how will you find सर k? k1 सर k1 k2 k3 अप टू kn डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 प्लस ये k3 अप सीरीज टू ऐसे ही kn। चलती रहेगी, ठीक है ना? This series will go on extending for n values if you have n springs in series, and similarly if you have n springs in parallel, then k will be simply the sum of all these things, k1 plus k2 plus so on till kn। तो ये अपनी बात हो गई आज स्प्रिंग कांस्टेंट्स को कैसे कंबाइन किया जाता है इफ दे आर गिवन इन सीरीज एंड पैरेलल। नाउ सम ट्रिकी पीपल गो वन स्टेप अहेड। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। Find the equivalent spring constant of this combination. 0.75 न्यूटन पर मीटर। कैसे निकाला 0.75 जरा, कैसे निकाला जरा, बाकी लोगों को भी समझाओ। 3/4 आएगा सर आंसर। कैसे आया, अपन सब जाने एक बार। सर टू और 1 जो है तो पैरेलल में है तो वो 2 + 1 हो जाएगा, और ठीक उसके है, बाद में जो यानी कि सेकंड वाला है पहले आपने क्या किया, पैरेलल वालों को एक स्प्रिंग बना दिया। तो आपने पहले तो 2 और 1 को ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड होते हैं सीधे सीधे। तो ये तो हो गया 3 न्यूटन पर मीटर, सही है ना? और उसके बाद ये रह गया 1 न्यूटन पर मीटर। अब ये 3 न्यूटन वाला और 1 न्यूटन वाला सीरीज में है, तो इनके ऊपर फॉर्मूला लगेगा 1/k इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/1, राइट? और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, so eventually your k becomes equal to 3/4 न्यूटन पर मीटर। तो जिन लोगों ने ये सॉल्व कर लिया था, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स। और जो लोग नहीं कर पाए थे वो अब समझ चुके होंगे कि इस तरह के कॉम्बिनेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जनरली अपन हमेशा यही चाहेंगे कि किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में, जैसे कि आपको किस तरह के वाइब्रेटिंग सिस्टम मिलेंगे, एग्जांपल दे देता हूं, ये देखो। तो कभी भी इस तरह के सिस्टम्स आ जाएं तो आपका पहला काम ये होना चाहिए टू एलिमिनेट दीज कॉम्बिनेशंस। इसको एलिमिनेट करो और इसका एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम बनाओ जिसमें सिर्फ एक स्प्रिंग हो और ये मास हो। उसके बाद आगे बात करेंगे। तो हमेशा कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग मिल जाए तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कन्वर्ट देम इनटू अ सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग। सो नाउ यू नो हाउ टू डू दिस कन्वर्जन ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स। अब अपन आते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे थे अपन इसकी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक खाली स्प्रिंग लिया, उसके ऊपर एक मास को सस्पेंड कर दिया। सो दिस इज अनडिफ्लेक्टेड स्प्रिंग, एंड देन आफ्टर सस्पेंडिंग द मास फ्रॉम द स्प्रिंग, एवरीबडी नोज दैट द स्प्रिंग विल गेट अ स्मॉल स्टैटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी ये वाइब्रेट करना स्टार्ट नहीं हुआ है। दिस इज द इक्विलिब्रियम और मीन पोजिशन when m is attached and the system is idle, that is it's not oscillating। और इस टाइम पे जो स्प्रिंग में जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन आता है, ये जो गैप, स्प्रिंग इतने गैप से एक्सटेंड हो जाएगी सिर्फ मास को लटकाए रखने से। इसको अपन डेल्टा डिक्लेयर कर रहे हैं।
एंड लेट अस कॉल दिस एज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन, यानी कि बिना चले स्प्रिंग में जो खिंचाव आ गया. एंड आफ्टर दैट फ्रॉम दिस मीन पोजिशन हाउ डू यू स्टार्ट द ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम. अब यहां पर ये मास चुपचाप बैठा हुआ है, अभी वाइब्रेट करेगा तभी तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे को खींचा, डेल्टा तक तो खींचा हुआ था ही, इसको थोड़ा सा और नीचे खींचा और छोड़ दिया, एंड नाउ इट इज ऑसिलेटिंग इन दिस पोजीशन. अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा स्टेप नंबर 1 आपके लिए यही होता है कि आप उसके ऑसिलेशन या वाइब्रेशन करते दौरान उसकी एक फोटो खींच लो. यू टेक और कैप्चर अ रैंडम पोजीशन while it is vibrating or oscillating. So this is what we have to do to take the differential equation of motion. यानी differential equation of motion तो तभी बनेगी जब वो move कर रहा होगा या vibrate कर रहा होगा. तो vibrate करते टाइम उसकी एक फोटो खींचो और उस फोटो के लिए differential equation बना लो. इस तरीके से करते हैं. तो अपन ने जब ये oscillate कर रहा था तब उसकी एक फोटो खींची, और वो रैंडम है तो वो कहीं पे भी हो सकता है. तो आप जब इसको खींच करके छोड़ोगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये मास इस मीन पोजीशन से ऊपर कहीं दिखेगी, तो ये वाई ऊपर भी हो सकता है. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मीन पोजीशन पे दिखेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा वाइब्रेशन के दौरान जब ये मीन पोजीशन से नीचे होगा. तो ये कहीं पर भी हो सकता है, मास ऑसिलेट कर रहा है ना, ऊपर नीचे, इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस. ठीक है. तो आपने एकदम से फोटो खींची तो कहां पाया मास को, यहां पाया इसको, इट वॉज एट दिस लोकेशन. अब ये भी नहीं पता कि ये नीचे को जा रहा था, अपनी मैक्सिमम बॉटम पोजीशन पे था, या ऊपर को आ रहा था. इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ने तो बस इसकी फोटो खींच ली. अभी ये इस फोटो में अपनी मीन पोजीशन से, यानी कि इस लाइन से वाई डिस्टेंस नीचे दिख रहा है. So a random position was considered wherein the mass is y displacement below the mean position. Now please remember, मैंने यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए एक रैंडम पोजीशन में y डिस्प्लेसमेंट नीचे लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर नहीं ले सकते. You can take with full confidence, आप ये कह सकते हो कि ये अभी मास मेरा यहां पर है, और इसके लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो और वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी. ये मेन पोजीशन है, आप ऐसा ले सकते हो कि भाई मैं तो यहां मान रहा हूं, भाई मैंने जब फोटो खींची तो मास मेरा ऊपर था, मेन पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर था. आपने जब फोटो खींची तो उस टाइम पे नीचे मिला होगा आपको, मेरे को तो ऊपर मिला. तो इसके लिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी क्या? इसके लिए भी बन जाएगी और सेम बनेगी. So we will come to that later if we find time. या फिर मैं आपके लिए एक होमवर्क जैसा छोड़ दूंगा इसको, कि आप ऊपर की पोजीशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके देखो कि क्या वो सेम आती है कि नहीं आती है. ठीक है. एनीवे, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. अपन को ऑसिलेटिंग सिस्टम की एक रैंडम पोजीशन को हमेशा कैप्चर करना होता है, सो दैट वी हैव डन. और उसके बाद पैरामीटर्स डिस्क्राइब करना चालू कर दो. कितना नीचे है भाई पता नहीं, तो इसलिए मैं इसको y नाम दे रहा हूं. सो लेट अस से दैट सम y डिस्टेंस इट इज बिलो द मीन पोजीशन व्हेन आई टुक द रैंडम पोजीशन, एंड नाउ यू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ. अब इससे पहले कि अपन न्यूटन सेकंड लॉ इस पे लगाएं, आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता क्या है. बताइए एनीबॉडी, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? ये लगाना है अपने को, तो इसलिए ये पता होना चाहिए क्या है. Force is equal to rate of change of momentum. ओके. इन्होंने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, यानी कि d बाय dt ऑफ मोमेंटम. तो अगर मास कांस्टेंट है, एक सॉलिड मास है जो कि मूव कर रहा है, तो m तो कांस्टेंट हो गया. सो दिस विल बिकम m d by dt of velocity, which is nothing but acceleration. So this becomes mass into acceleration, यानी कुल मिलाकर के force is equal to mass into acceleration. यही कहता है न्यूटन सेकंड लॉ. लेकिन अब इसका एक रिफाइंड या परफेक्टेड डेफिनेशन आप लोग समझें. न्यूटन सेकंड लॉ says that if you see some multiple forces acting on an object of mass m, ठीक है,
यानी कि आप क्या देख रहे हैं, एक मास है जिसके ऊपर खूब सारी फोर्सेस एक्ट कर रही है, F1, F2, F3. The directions do not matter, these are vectors. ठीक है, so there are multiple forces acting on a mass m. What is the acceleration going to be? So Newton's second law says that if multiple forces are acting on the body of mass m, then the product of mass into acceleration will definitely be equal to the vector sum of all the forces. ये कहता है न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल सरल भाषा में. तो आपने अगर सिर्फ इतनी सी बात कह दी कि F इज इक्वल टू एम ए, तो ये एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो गया. आपने ये कहा कि मेरा सिर्फ एक मास m है, उस पे एक फोर्स F लग रही है. चूंकि एक ही फोर्स है, तो ये फोर्स जो होगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगी. तो अगर आप सिर्फ F इज इक्वल टू एम ए कहते हो तो आपकी बात अधूरी रह गई. ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट the statement of Newton's second law, you have to consider the possibility that there might be multiple forces acting on the mass. तो मास पे आप जनरलाइज करो कि भाई कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, so if n number of forces are acting on a mass, then mass into acceleration will be simply equal to the vector sum of all these forces. बस इतनी सी बात है न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, तो अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे आप लोग. और मुझे इसका आंसर बताएंगे. जमीन है, जमीन पे m मास रखा हुआ है, सो ऑब्वियसली mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स. मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को देखना है ना कि अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगे. सो आई एम ड्रॉइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन m. ठीक है, जमीन एक रिएक्शन देगा इसको, सो लेट अस कॉल दिस एज नॉर्मल रिएक्शन. यू आर ट्राइंग टू पुल दिस मास टुवर्ड्स द राइट साइड बाय अप्लाइंग अ फोर्स, let us say 10 Newton, and there is some friction on the ground, so the frictional force equal to mu into r will be acting in the backward direction. So there are 4 forces acting on it right now. Apply Newton's second law and make the equation of motion. Anybody जल्दी से बनाओ. Sir, 10 Newton minus mu mg is equal to ma. इन्होंने कहा ma is equal to 10 minus mu r. सही है क्या? Yes sir. और आपने थोड़ा सा और बेहतर करा था इसको, जहां तक मेरे को याद है आपने r की जगह कहा था mu mg, है ना? Yes sir. वेरी गुड, एक्सेलेंट, दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन. अब इसमें आप सोच रहे होगे कि भाई इसमें r और mg वगैरह क्यों नहीं आए. क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज अ सॉलिड ग्राउंड. सो दैट मीन्स द forces acting in the vertical direction must be in such a way so that they cancel out each other, or rather we can simply say that r is equal to mg. तो इसलिए ये दोनों वेक्टर तो पिक्चर से गायब ही हो गए. अब रह गए सिर्फ 2, एक 10 रह गया और पीछे को एक म्यू आर रह गया. तो अगर 2 ही है तो इनका वेक्टर सम कैसे लोगे? वेक्टर सम लेने के लिए अब आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माननी पड़ेगी. एंड अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस आई चूज to treat the right hand side as the positive direction for vectors. So now, according to the definition of Newton's law, mass into acceleration of this body will be equal to the vector sum of forces. तो पहला फोर्स क्या है? F1 है 10, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस 10 ले लिया. और समेशन ऑफ फोर्सेस करना है अपन को, वी हैव टू ऐड ऑल द फोर्सेस विद देयर प्रॉपर साइन. तो अब मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा दूसरी वाली फोर्स, लेकिन दूसरी वाली फोर्स जो म्यू आर है वो नेगेटिव साइड में है, तो इसलिए इस पे माइनस साइन लगेगा, और रादर आई वुड से माइनस म्यू आर. सो द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स मी द इक्वेशन ऑफ मोशन एज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 माइनस म्यू आर. फिर आप एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर दो, चाहिए तो, चाहे तो कर दो, नहीं चाहिए तो मत करो. आपने कहा कि भाई हमें पहले ही पता है r इज इक्वल टू mg, तो इस mg को यहां पे रख दूं क्या?
बिल्कुल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 माइनस म्यू mg। ये बन गई इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप ये सोच सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन तो है, लेकिन क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल है, बिकॉज एक्सेलरेशन कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और x डबल डॉट, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन भी अपन यूज करेंगे। तो अब अगर मैं इक्वेशन को वापस से लिखूं तो माय इक्वेशन इज m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 10 प्लस म्यू एम जी इक्वल टू 0। इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? ये बता दो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? है सर। क्योंकि डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, सीधी सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड दिस इज हाउ यू डेवलप द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। तो अपन अपने स्प्रिंग मास सिस्टम पे वापस से आएंगे कल, न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को डेवलप करना सीखेंगे, और उसके बाद ये पता करेंगे कि ओमेगा एन को कैसे ट्रेस किया जाता है। ठीक है, वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर टुडे एंड लेट मी टेक द अटेंडेंस। Please don't go away.